Welcome, Narpatlal Senior Teacher, Mahatma Gandhi School, Chainpura. Today we are reading 7th class Geography Chapter 4, Air. Air. Our atmosphere is surrounded by a huge blanket of air called the atmosphere. Composition of the various gases surrounded. These are the layers of the gases surrounded the earth. Main gases, as we can see, the carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect. This is for our pollutions. So before going that, let us discuss about the air. भूगोल चैप्टर 4 पे एयर या वायु, उसी के बारे में हम बात करेंगे और हवा के बारे में। एटमॉस्फेयर में जो हमारे सराउंडिंग है, एक ब्लैंकेट आया हुआ है, उसी की हम बात करने वाले हैं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एज वी कैन सी, our atmosphere is divided into 5 layers starting from Earth's surface. These are the troposphere. Troposphere is surrounded, average height is 13 kilometers. Then stratosphere. Stratosphere extend up to 50 kilometers. Mesosphere up to 80 kilometers height. Thermosphere is from 80 to 400 kilometers, and uppermost layer of this atmosphere is very high and very thin air. Now, the composition of the atmosphere, mainly the nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. Other than these gases, carbon dioxide, helium, ozones, argons, hydrogens are found in lesser quantity surrounding. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. Dust particles also present in the air. So this was the way how the structures around the earth, the height of the various gases and the composition of the gases. हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें कई गैसें होती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य गैस हैं और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन वगैरह गैसें भी पाई जाती हैं और धूल, डस्ट गैसेस भी होती हैं। अब स्ट्रक्चर जो है इसका, इसमें हमें 5 प्रकार का है जो इसकी हाइट के अनुसार डिसाइड होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेदर एंड द क्लाइमेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेदर इज द आवर्स टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. How it is, what are the temperatures, what is the humidities, whether it is raining or not, every hours it is calculated. So this is the way. Now second, average weather condition of a place for a longer period is the time represent the climate of the place. For almost 30 years, average conditions of particular day of the month is calculated and we call it as a climate. Now, climate और मौसम और ऋतु, जलवायु, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मौसम हर दिन प्रति घंटा बदलता रहता है और लंबे समय तक औसत प्रतिशत के मौसम को कैलकुलेट करते हैं और उसे हम क्लाइमेट कह देते हैं और दिस इज द क्लाइमेट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द
temperature. What is the temperature? Now, a degree of hotness and coldness of the earth, air called at temperatures. Temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Also, and even when we go towards the north or south poles, equators increasing, the temperature increases or decreases, changes. Now, an important factor that influences the distributions of temperatures in insolations. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. The amount of the insolation decreases from equators towards the pole. ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हमारे अक्षांश रेखाएं बढ़ती हैं तो एंगल बदलते रहते हैं और वहाँ पर तापमान कम होता जाता है. इक्वेटर प्लस कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो हमेशा तापमान ज़्यादा होता है और धीरे धीरे कम ज़्यादा होता रहता है. ऋतुएं बदलती वैसे ही इसका जो है फर्क पड़ता है. एक्सिस पे जो इसका झुकाव है वो भी फर्क पड़ता है. अब हम बात कर रहे हैं एयर प्रेशर. एयर का एक प्रेशर होता है, ये पर्टिकुलर प्लेस पे कितना एयर है ये देखा जाता है. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द pressure extended by the weight of air on the earth's surface. Horizontally, distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. In the areas having lower temperature, the area is cold. टेम्परेचर कम है वो ठंडा होता है. एक जगह विशेष के ऊपर वह हॉरिजॉन्टली स्थिति में नापा जाने वाला एयर का बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको एयर प्रेशर बोलते हैं. द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर. हवा का मूवमेंट, गति विधि जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती रहती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हवा. जो हवा है, विंड है, उसके बारे में बात करेंगे. The movement of air, high pressure areas of to low pressure is called wind. High pressure to low pressure is called wind. Wind can be broadly divided into three types: permanent winds, seasonal winds, and local winds. On the 25th October 1999, cyclone winds originated as a depressions and affected Odisha, killing thousands of people. What has happened? There was a cyclone in Odisha, eastern sea coast of the India. In the Bay of Bengal on 17 and 18 October, cyclone hit 5 districts of the state. Another super cyclone occurred on 29th October 1999. Devastated large portions of the state. Damages caused were mainly due to three factors: the velocity, speed of the wind velocity. Second was rain. It was heavy raining. And the third factor was the tidal surge. Higher tidal sea waves raised up to 7 to 10 meters and sea waters spreaded surrounding areas, massive destructions of the coastal areas. This was a drastic depressions in these areas. As per lasted the wind speed
the velocity of wind was 260 kilometers per hour, like an aircraft per hour. And these high velocity winds uprooted trees, damaged houses, rooftops of several industrial areas, seeds, everything. It was very drastic then time. Power supply and telecom lines in Odisha on those days snapped, and the winds causes the tidal waves. Waves swept 20 kilometers inland, brought massive destruction of the coastal areas. This was the main condition, damage to the standing paddy crops also. Forest, trees uprooted, all of them, and this was the cyclone originated as the depressions in Gulf of the Thailand also, near the East Port Blair. 25th October 99, gradually movement in a northwest direction intensified into super cyclone and hit the areas between Erashma and Balikuda in Odisha. 29th October 1999, 10:30 a.m. Measure various things goes off. A large number of the livestock were killed. Standing crops of paddies, vegetables, fruits were heavily damaged. Land has turned infertile. Large tract, shawl, teaks, bamboos plantations have disappeared. Mangroves forest between Paradip and Konark vanished. उड़ीसा के अंदर इतना भयानक तूफान आया था, ये विंड जो है इसने अपनी वेलोसिटी स्पीड बदली, 260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चली। ये थाईलैंड और पोर्ट ब्लेयर के बीच में से, हमारे अंडमान निकोबार से प्रेशर एरिया बना था, और फिर ये मूव किया, उड़ीसा के 5 जिलों में ये फैला। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठी कि 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई। साथ में रेनिंग हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त बारिश चल रही थी, हाई टाइड्स थे, तो हज़ारों लोग उसमें परेशान हो गए थे, घर चले गए थे, इंडस्ट्री चली गई थी, दुनिया भर का नुकसान उसने किया था। तो ये एक मेजर फैक्टर affected, depressed the Odisha. Now, let us talk about the moisture. When water evaporates from land and another water bodies, it becomes water vapors. And moistures in the air at any time is known as the humidity. When the water vapors rises, it starts cooling. The water vapors condense, causing the formation of droplet of waters. When these droplets of water become too heavy to float in air, they come down as the precipitation. Precipitations that comes down to the earth in liquid form, we called it a rain. On the basis of the mechanism, there are 3 types of the rainfall: convectional rainfall, orographic rainfall, and cyclonic rainfall. Rainfall is the very important for survival of the plants and animals. नमी, हवा के अंदर पाई जाने वाली नमी, नमी के मुख्य कारण होते हैं एवोपरेशंस। हवा में जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उससे पानी भाप बनता है, वाष्प बनता है और हवा में जाता है, और वहाँ पर जब मॉइस्चर बढ़ जाते हैं तो ड्रॉप्स बन जाती हैं, और वो ड्रॉप्स जब ज़मीन की तरफ आती है, प्रेसिपिटेशन होती है, तो रेनिंग शुरू हो जाता है। और ये रेनफॉल डिफरेंट टाइप की है,
एक रेनफॉल होता है जो वार्म एयर होती है, कोल्ड एयर की वजह से वार्म एयर को अप होती है और ये सर्कुलेशन की वजह से ड्रॉपिंग हो जाती है, साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं इसको। फिर रिलीफ ऑर्गेनिक, जब कोई भी समुद्र की तरफ से आने वाली हवा की प्रेसिपिटेशन होती है, मॉइस्चर आते हैं, उसके जो है क्लाउड्स आते हैं और नज़दीक पे पहाड़ों से टकरा कर बारिश कर देते हैं, तो हम इसको रिलीफ रेनफॉल या ऑर्गेनिक रेनफॉल भी बोलते हैं। फिर है कन्वेक्शनल, वो वार्म्स एयर होती है, नीचे ज़मीन पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो गर्म हवा ठंड की तरफ ऊपर की तरफ मूव करती है और ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आनी शुरू होती है और इस तरह से ये रेनिंग शुरू हो जाती है। सो दिस वाज द फैक्टर इफेक्टिंग आवर रेनफॉल। हमने जो है बात की है वो हमारे चारों तरफ फैले वायुमंडल के बारे में बात की है, किस तरह से वायुमंडल इफेक्ट करता है, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है जिसे हमें देखना होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द आवर एयर्स इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कहा जाता है कि इट क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस। पृथ्वी के चारों तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक सीमित मात्रा होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाती है तो एक ग्रीन हाउस जैसा बन जाता है और इसमें जो हमारी हीट होती है वो रेडिएट होती है, तापमान बढ़ जाता है और इसका असर ये होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीजेस ड्यू टू द स्मोक ऑफ द फैक्ट्री। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे वायुमंडल में कुछ मात्रा में होता है, इसके अलावा आजकल इंक्रीज हो रहा है, इसमें फैक्ट्री स्मोक्स, कार फ्यूम, हीट रेंटेड इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। नाउ इसको हम जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो इसको जो है दूसरे शब्दों में हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ वार्म अप होना, ज़्यादा टेम्परेचर होना, दिस राइजेज द टेम्परेचर्स कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मेल्ट। जो हमारे ध्रुव, दोनों ध्रुवों की तरफ बर्फ जमी है या ऊंची पहाड़ियों पे बर्फ जमी है, तापमान बढ़ने से वो मेल्ट हो जाती है। दिस इज द रीजन। नाउ causing flood in the coastal areas, may drastic changes in the climate takes place, leading to the extinction of some plants, animals, etc. Now when air is heated, हवा में नमी की गर्मी की मात्रा बढ़ती है, heat expands, it expands, becomes higher to go up. Cold air is denser and heavy. Thaw in the why it tends to sink down. When hot air rises, cold air from surrounding areas rushes there to fill in the gap. That is how an air circulation takes place. तापमान जब बढ़ता है तो हवा नमी गर्म हो जाती है, हवा गर्म, जब टेम्परेचर बढ़ने से हवा गर्म होती है और गर्म हवाएं गैसेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, अपनी जगह खाली करती है। जो खाली जगह है वहाँ पर जहाँ कोल्ड विंड है वो मूव करती है और इस एरिया को फिलअप करती है और इस तरह से गर्म से ठंडी और ठंडी से गर्म की तरफ सर्कुलेशन हो जाता है। वी कॉल इज द विंड या एयर सर्कुलेशंस। अब हम बात कर रहे हैं, वो आपने देखा था कि किस तरह से स्ट्रेटोस्फेयर काम करता है। द ट्रोपोस्फेयर, द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अप टू 13 किलोमीटर हाइट. Air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fogs, hailstorms occurs in this layer. जो भी हमारे यहाँ वायुमंडल में परिवर्तन होने से बर्फबारी होती है या बरसात होती है, गड़गड़ाहट होती है, बादलें बनते हैं, सब इसी में पाए जाते हैं. उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर. अबव दिस इट लाइज एंड अप टू height is up to 50 kilometers. Almost free from clouds, associated weather phenomena, and ideal flying of the aeroplanes. One important feature of the stratosphere is that
इट कंटेन्स लेयर ऑफ द ओजोन गैस। जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें वायुमंडल समान रहता है, बर्फ वगैरह नहीं होती है, क्लाउड्स नहीं होते हैं, और एक विशेष बात है ओजोन परत भी इसी में पाई जाती है जो हमारे लिए सूर्य की तरफ से हार्मफुल रेज आती है उसको रोक दी है। मेसोस्फेयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, लाइज बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर्स, बर्न अप इन द मेटेरिटीज, उल्कापिंड जो आते हैं वो इसमें एंटर करते ही बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसी प्रकार से थर्मोस्फेयर्स इन टेम्परेचर्स, थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट। इनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर, इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 kilometers height. This layer helps द रेडियो ट्रांसमिशन, जो हमारे रेडियो ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन जितने हो रहे हैं ये इस लेयर में होता है, थर्मोस्फेयर लेयर पर होता है। और एक्सोस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर, वेरी थिन एयर्स लाइक हीलियम्स, हाइड्रोजन्स फ्लोट्स इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। तो ये हमने बात की है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें नोट डाउन करते हैं, किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in 200 crores part of the energy. Now, standard unit of the measuring temperature is degree Celsius. It was invented by Andreas Celsius. On the Celsius scales, weather freeze at 0 degree centigrade and boils at the 100 degree centigrade. तापमान को मापने के लिए हम सेंटीग्रेड को यूज करते हैं, सेल्सियस सेंटीग्रेड, और इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट भी होता है। नाउ वन मून, अगर हम मून पे जाते हैं, चंद्रमा पे जाते हैं, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हमें बहुत ही समस्या आ सकती है। तो हमें ऐसा एक किट बनाकर पहनना पड़ता है जिससे ब्लड वेसल्स को ब्रस्ट न हो, हमारे खून का दौरा बराबर चलता रहे। विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन, और विंड के बारे में ये है कि वो किस दिशा से आ रही है उससे जानी जाती है। जब ये ईस्ट दिशा से आ रही है, वेस्ट की तरफ जाए तो ईस्टर्न कहलाएगी, और वेस्ट से आके ईस्ट को जाए तो उसको हम वेस्टर्न कहेंगे। तो ऑलवेज फ्रॉम इज कॉल्ड द वेस्टर्ली, राइट। नाउ अगर हम देखें कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, बेल्ट्स हैं, विंड सिस्टम्स हैं, दैट वी कैन सी। सबसे पहले नॉर्थ एंड साउथ पोल, हाई प्रेशर एरिया इज देयर बिकॉज देयर इज अ क्लाउड, बर्फ जमी हुई है वहाँ पर, तो हाई प्रेशर है। देन इट इज पोलार्स ईस्टर्लीज, नॉर्दर्न पोल पे जब हवाएं आती है तो ईस्टर्न साइड से आ रही है तो हम उसको बोलते हैं पोलर ईस्टर्ली। देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगला आता है वो होता है कि सब पोलर लो प्रेशर्स, इट इज अराउंड 60 डिग्रीज नॉर्दर्न एरियाज। देन प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, अगेन जो है हवाएं अगले उसमें मंडल में आती है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज, पश्चिमी हवाएं चलती हैं। ये 35 से लेकर 60 डिग्री के बीच में, 35 to 60 डिग्री नॉर्थ। सेम वे इन द साउथ, अपोजिट डायरेक्शन, फ्रॉम वेस्टर्ली इट इज कमिंग and effects there. Now next is the Tropic of the Cancers. There we get the northeast trade winds, व्यापारिक हवाएं जो नॉर्थ ईस्ट से आती है और साउथ वेस्ट को जाती है, और ये व्यापारियों के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। जब व्यापारी अपने शिप्स को जो विंड पे चलते थे, उन पे चलते थे, तो उनको बहुत फ़ायदे होते थे, इसमें बड़ी आसानी से वो यात्राएं कर लेते थे। नाउ इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरियाज, क्योंकि इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा तापमान रहता है तो वो लो प्रेशर एरिया कहलाता है। देन सेम
when we move toward the south, there again the direction of the wind changes. Otherwise same thing is there. South is trade winds. After trade winds is tropical high pressure. उसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं. हॉर्स लैटिट्यूड एक स्पेसिफिक बातें हैं कि जब जहाज आते थे उनमें हॉर्स होते थे, इस क्षेत्र में आते ही मूवमेंट कम हो जाती थी, लो प्रेशर होता था, तो हॉर्स को जहाज़ों से निकाल दिए जाते थे, समुद्र में फेंक दिए जाते थे. ऐसी स्थिति हो पाती थी पुराने समय में. इसके बारे में कहावतें हैं. नाउ उसके बाद आती है प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, देन सब पोलार लो प्रेशर्स एंड पोलार्स ईस्टर्लीज. नॉर्थ एंड साउथ में डायरेक्शंस चेंज होते हैं, अदरवाइज सेम विंड प्रेशर बना रहता है. सो दिस वाज द एयर वी हैव गॉन थ्रू, सीन, एंड सेम वे द प्रेसिपिटेशंस आर द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन. हमारे तरफ तो जो वातावरण में बरसात होती है, नमी आती है, उसके बारे में स्नो हो सकती है, स्लीट हो सकती है, और साथ ही साथ हेल्स भी हो सकते हैं, बर्फबारी हो सकती है, हमारे यहाँ ओले पड़ सकते हैं, बारिश रेनिंग हो सकती है. ये सब फेनोमेनाज है. सो दिस वाज द एयर 4th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर. हैव यू अंडरस्टूड? लाइक, share it and subscribe it. Jai Hind.